हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा 4 जुलाई का न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं और अगेन इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए है ही। तो सबसे पहली न्यूज दैट इज योर GS2 बिकॉज यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे जजेस के रेटिंग। सो जस्टिस वर्मा इज इन न्यूज। जस्टिस वर्मा केस गवर्नमेंट टू फास्ट ट्रैक बिड टू इम्पीच। तो इनकी इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ an inquiry committee will be set up by the presiding officer of the House concerned to probe charges against Supreme Court Judge Justice Yashwant Verma during the coming monsoon session of Parliament. तो पार्लियामेंट में अभी ये फोकस होने जा रहा है एंड सोर्सेज सेड द टाइमलाइन फॉर द पैनल टू सबमिट इट्स रिपोर्ट विल बी क्रंच्ड फ्रॉम 3 months so that action against the judge from whose residence stocks of currency notes were allegedly recovered is not delayed. तो इनके पास से बहुत सारे इनके घर में बैकयार्ड में आग लग गई थी और जब वहां पे उसको बुझाने के लिए गए तो बहुत सारे स्टॉक पाइल्स मिले थे वहां पे कैश के जो कि जल चुके थे। और उसके बाद फिर मीटिंग जो डेफिनेटली एक उसके ऊपर कमेटी बिठाई गई और इस कमेटी को बोला गया कि वो फास्ट रिपोर्ट करे बिकॉज मॉनसून सेशन में इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। नाउ मैटर्स रिलेटेड टू द जुडिशरी मस्ट बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स, सो द गवर्नमेंट हैज रीच्ड आउट टू ऑल द प्रोमिनेंट पार्टीज एंड प्रोसेसेस of the removal of Judges Verma would be unified stand ताकि ये political setup ना हो। Definitely corruption को जो है वो transparently check किया जाए। The government will start collecting the signatures of MPs after deciding which house should initiate the process next week. So Parliamentary Affair Minister Kiran Rijiju उन्होंने क्या बताया that the chair will then constitute a committee as per the Judge Inquiry Act of 1968. Very very important fact. तो किसके बेसिस पे होता है? That is the Judges Inquiry Act of 68 and the committee will table the report following which the discussion will take place. तो ये पूरा प्रोसेस आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। The sources in the government said it is exploring special provisions to do away with the 3-month tenure of the committee because 3 महीने देने ही पड़ते हैं कमेटी को चेक करने के लिए और गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो फास्ट करे। So incidentally, sources also indicated the government was in no hurry over the opposition's demand for the removal of Allahabad High Court Judge Justice Shekhar Yadav over a controversial speech. लेकिन at the same time एक और जज भी न्यूज में है that is शेखर यादव because उन्होंने जो है उनकी स्पीच जो थी that was very much controversial at विश्व हिंदू परिषद event last year while admitting that more than 50 opposition MPs had signed on the paper required to initiate the process for the removal of Justice Yadav. And that the signatures had been verified. A source said in the case and the case could not be compared to Justice Verma. लेकिन इनका जो केस है गवर्नमेंट मान रही कि इतना खतरनाक नहीं है जितना जस्टिस वर्मा का था। So there is a stark difference between the charges of the corruption. The opposition has initiated the move against Justice Yadav in राज्यसभा, जबकि जस्टिस यादव के खिलाफ जो है वो राज्यसभा में इनिशिएटिव लिया जा चुका है and Chairman Jagdeep Dhankar is expected to give a ruling on the notice. Earlier, the government as well as some opposition parties had also suggested dispensing with the probe committee of the House कि जो probe committee है इसको इतनी importance ना दी जाए and the case of Justice Verma since a 3-member committee appointed by Chief Justice of India Sanjeev Khanna had already indicted him because इससे पहले जो चीफ जस्टिस के अंडर कमेटी बनी थी वो ऑलरेडी उनको इसके लिए दोषी पा चुकी है। तो अभी आपको पार्लियामेंट की तरफ से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। Now the government said that however decided on holding a house probe too, we would like to go by establishing rules in this. On Supreme Court panel report, Union Minister said it was in the nature of preliminary probe because जो Supreme Court ने बिठाया था उसको हम एक preliminary probe ही मानते हैं that looked into whether the charges were fit enough to be forwarded कि इसको गवर्नमेंट के पास भेजा जाए कि नहीं इन चार्जेस को। So monsoon session of the parliament which was earlier scheduled from 21st of July to August अभी जो है August 12 has now been extended till August 21. तो monsoon session बढ़ा दिया गया है। Government officials said we hope that renewal process will be over in this session itself and this is said by government. So एक legislative business to finish है and that it would come out with the agenda soon and all party meeting to discuss the business of the government may be held. So the panel set up by Supreme Court in the Justice Verma case had submitted its report holding allegation that wads of currency notes were discovered at his official residence on March 14 by authorities called to spot due to fire. Now as per the Judges Inquiry Act 1968, a complaint against judge inquires
एज फर्स्ट स्टेप अ रेजोल्यूशन साइन। तो पहला काम क्या होना चाहिए कंप्लेंट के लिए, अ रेजोल्यूशन जो है साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इफ मूव्ड इन लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इफ इनिशिएटेड इन राज्यसभा। तो आगे का प्रोसेस ये होता है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस द एमपी सबमिट द मोशन, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकता है। एज इन केस ऑफ जस्टिस वर्मा, द गवर्नमेंट इज येट टू डिसाइड व्हिच हाउस विल टेक अप द मोशन फर्स्ट, but since it is government's initiating the action and seeking to build political consensus, it is expected that the presiding office will accept it। क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही कंसेंसस ला रही है तो लगता है कि ये इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एंड आफ्टर अ मोशन ऑफ रिमूवल इज अडॉप्टेड बाय ईदर हाउस, स्पीकर और चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी। उसके बाद फिर ये प्रोसेस होता है कि 3 मेंबर कमेटी जो है बिठाई जाती है, हेडेड बाय वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज चीफ जस्टिस, और इसको जो है वो चीफ जस्टिस हेड करते हैं। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो आपके लिए जज के रिमूवल का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से फोकस करो, और कौन से जजेस न्यूज में है ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी भाई लखी शाह वंजारा जी के ऊपर, बिकॉज इनकी जयंती जो है वो मनाई गई है, दैट इज ऑन 4th of July 2025। तो अभी पीसीएस के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन थे। सो लेट अस सी। अभी Now, as per Wikipedia, भाई लखी शाह वंजारा 1580 में इनका बर्थ हुआ, 4th of July and 7th of June 1680 तक ये रहे। एंड वॉज अ वॉरियर ऑफ बंजारा किंग, एशियन ट्रेडर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, ओनर ऑफ 4 विलेजेस लोकेटेड इन दिल्ली, एंड ही वाज आल्सो सप्लाइंग गुड्स फॉर द मुगल आर्मी। तो बहुत जो है वो प्रोमिनेंट ट्रेडर थे अपने टाइम के। एंड ही डाइड ऑन 7th of June एट मलच्चा पैलेस एट द एज ऑफ 99 ईयर्स। और इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमें वैसे भी याद रखना चाहिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही चाहिए, दैट इज रिकवरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। और गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बाद उनकी बॉडी को जो है इन्होंने क्रीमेट किया था, ये इनकी सबसे ज्यादा जो है बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और बहुत ज्यादा ये गुरुज के साथ अटैच थे। एंड आफ्टर गुरु तेग बहादुर जी वाज एग्जीक्यूटेड बाय मुगल एम्परर औरंगजेब, लखी शाह वंजारा एट अ great personal risk retrieved the guru's body from execution site and cremated it at his home, जहां पे कि अभी which is now the site of गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब in Delhi। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता ही होगा आई होप, और अगर नहीं पता या अगर ध्यान में नहीं है तो इसको जरूर अच्छे से आप लर्न कर लो, और इसके साथ ही इनके बारे में और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो भी आप लर्न करो। सो इज ऑल्सो क्रिएटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लोहगढ़ फोर्ट। तो लोहगढ़ फोर्ट में इनकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज काफी सारा सामान जो है उन्होंने दिया था। एंड ही वाज ओनर ऑफ 4 विलेजेस इन दिल्ली नेम्ड मलचा, रायसीना, देन बाराकंबा एंड नरेला, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ही यूज्ड टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम इवन सेंट्रल एशिया टू इंडिया। And then his grandfather, even Naik Thakur, was one of the main suppliers of Mughal army during the reign of Akbar, and even he was the main contractor for the construction of Red Fort. And King Lakshmi Shah Banjara was indulged in inter-regional exchanges, even in agricultural products में करते थे, construction material and livestock में। And the name लखी शाह में जो टाइटल शाह है, obviously this is king, और इनकी legacy में देखिए तो श्री गुरु नानक देव जी से ही कंटिन्यू होती है। And in order to fight the operation against Mughals, his family was associated with श्री गुरु नानक देव जी and even बाबा बंदा सिंह बहादुर तक। एंड भाई बंजारा एंड हिज ब्रदर्स भाई गुरदास जी वर क्लोज एसोसिएट्स ऑफ श्री गुरु हरगोबिंद जी, श्री गुरु हराय जी, श्री गुरु हरकृष्ण जी, देन श्री गुरु तेग बहादुर जी, वो तो है ही, लास्ट में सेक्रीफाइस के टाइम पे इन्होंने ही क्रीमेट करा, एंड बाबा इवन गुरुदत्ता जी। तो इन सबके साथ जो है इनके संबंध थे। एंड आफ्टर हिज डेथ हिज सन्स भाई हेमा, भाई इवन नगारिया, एंड लेटर बिकेम जवाहर सिंह, भाई हरिया, डॉटर बीबी सीतो, जिनको बाद में बसंत कौर के नाम से जाना गया, और क्लोज एसोसिएट्स ऑफ गुरु इवन गोविंद सिंह जी, जो हमारे 10th गुरु हैं। एंड फ्रॉम 1700 टू 1704 भाई हेमा एंड भाई नगरिया एंड भाई हरिया, इन्होंने मार्टीडम ली थी अनंतपुर साहिब में फाइटिंग अगेंस्ट मुगल्स। एंड लेटर हिज ग्रैंडसन भाई अग्रज सिंह एंड भाई फरज सिंह हु वर अमंग द मेन जनरल्स ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो इन्होंने भी लड़ाई की है लोहगढ़ और जो है आपकी सधौड़ा की, राइट। और both of them were killed on 9th of June 1716 along with Baba Banda Singh Bahadur at Delhi, and he dedicated almost 80 years of his life
to flourish Sikhism and sacrifices wealth and family members for the sake of Sikhism। तो बहुत बड़ी इनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है पंजाब के लिए। केवल मेमोरियल्स में लोहगढ़ सेंचुरी जो है उनको स्टैब्लिश किया बाबा बंदर सिंह बहादुर ने, और जो कि स्प्रेड है आपका 7,000 एकड़ लैंड के ऊपर, तो इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फोर्ट इज अबाउट 30 किलोमीटर। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस इंजीनियरिंग फार्मूला शो करता है कि इतना बड़ा बनाने के लिए 70 से 80 साल लगते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ दीज आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू किंग भाई लक्की शाह बंजारा नियर लोहगढ़ फोर्ट इंडिकेटेड भाई लक्की शाह बंजारा कंट्रीब्यूटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लोहगढ़ फोर्ट अराउंड 1630 to 1675। और इंपॉर्टेंट प्लेसेस इनकी सराय बंजारा, बारादरी नियर बसंतपुर तहसील राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला, यहाँ पे इनकी एक सराय बनी हुई है। एंड देन फिर ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पिक्स भी हैं। देन गुरुद्वारा नौलखा साहिब, ये अगेन पटियाला पंजाब के अंदर है। एंड देन फिर ईशरगढ़ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा में, ठीक है, वेल रिलेटेड टू लक्की बंजारा है। एंड देन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर इस्माइलबाद, ये भी यहाँ पे एक वेल है। एंड देन फिर जो है इनका फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू लक्की शाह बंजारा 300 एकर्स की हैं। पिंजौर टू नालागढ़ बालासोल हरियाणा में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। नालागढ़ रोड हिमाचल प्रदेश में इनके 5 प्लेसेस हैं लक्की शाह बंजारा के साथ रिलेटेड है जो। देन मलच्चा महल न्यू दिल्ली में फोर्ट ऑफ भाई लक्की शाह बंजारा एट मलच्चा विलेज है, एंड जो कि अब बाद में कंट्रोल में था अंडर द कंट्रोल ऑफ नवाब ऑफ अवध। देन गुरु रकाबगंज साहिब ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में गुरुद्वारा साहिब है। देन और बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी है इन द विसिनिटी ऑफ लोहगढ़। तो ये सारी जो है वो इनकी कंट्रीब्यूशंस, इनके मेमोरियल्स हैं। तो ये सारे ध्यान रखिएगा फॉर पीसीएस प्रीलिम्स एंड पीसीएस मेंस में भी इनकी कंट्रीब्यूशन पे आपको छोटा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेटा है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर पंजाब का, और इसमें ये बताया जा रहा है कि पैडी का एरिया इनफैक्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होने की बजाय, तो इसमें आपको कुछ डेटा मिल जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ते हैं। So with the advancement of paddy sowing starting earlier as compared to the previous season, after Punjab Preservation of Subsoil Water Act 2009, paddy sowing in Punjab has been completed on 22nd जो है on definitely okay has been completed on 22.47 lakh hectare till date, up from 18.09 lakh hectare। तो पहले 18 अराउंड लाख हेक्टेयर पर अगर पैडी सो की जाती थी, तो अब है आपका 22 अराउंड approximately 22 lakh hectare कह सकते हो, as increase of 4.3 lakh hectare। And the Preservation of Subsoil Water Act aims at conserving groundwater by regulating the sowing of transplanting of paddy by restricting farmers। जबकि हमारा ये एम है कि हम कम करें पैडी का एरिया, बिकॉज हमें ग्राउंड वाटर को बचाना है। The sowing which begin जनरली जून 1 में हो जाती है, this year as against June 10, और अभी 10 दिन 9 दिन पहले शुरू हो गई है। एंड लेटर इन द प्रीवियस ईयर्स विल कंटिन्यू बाय द एंड ऑफ द मंथ, जबकि कई बार जून के एंड तक की सोइंग स्टार्ट होती है। पैडी फार्मर्स विल स्टार्ट सोइंग ऑफ बासमती एंड ऑल। तो ये लेटेस्ट डेटा है जो सिर्फ आपने इसी को ध्यान रखना है कि ये आपका इंक्रीज हो गया है 4.38 लाख जो है वो हेक्टेयर डेटा, आपका जो पैडी का एरिया है दैट इज ऑन इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारी एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऑलिव रिडेड टर्टल न्यूज में रहते ही हैं, तो इसको ध्यान से सुनो। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी बैठी हैज डेफर्ड इट्स क्लियरेंस फॉर द प्रपोजल ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा पुरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो अभी एक्सेप्ट नहीं की गई बिकॉज इट्स रीजनल ऑफिस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल हार्म। अब ये इस बेसिकली जो है कमेटी ने ये पाया कि उस एरिया में ऑलिव रिडेड टर्टल्स को नुकसान हो सकता है, इरावदी डॉल्फिन को, माइग्रेटरी बर्ड्स को, और इसका जो है लॉस होगा इसकी वजह से 13,000 ट्रीज का, जो कि कोस्ट लाइन को बहुत ज्यादा जो है वो बचाते हैं एट द टाइम ऑफ साइक्लोन्स। तो इस तरह से उस एरिया में आपका एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। तो ये कमेटी विच स्क्रूटनाइजेस प्रपोजल सीकिंग फॉरेस्ट लैंड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट आस्क्ड द ओडिशा गवर्नमेंट टू टेक प्रिकॉशंस। सो ये प्रैक्टिकली ऑलिव रिडेड टर्टल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसी वजह से एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना कि कौन से ये जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, और इसको लेके जीएस पेपर 4 में आपकी एथिक्स के अंदर भी ये इस तरह की केस स्टडी आ सकती है। Now then आपका श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लियर्ड बाय यूनियन एविएशन मिनिस्ट्री ऑन May 5 is proposed to come up on around 471 hectare of land in Puri district, or that is Sipra Suballi, and the state government has sought approval for 27.8
हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर द प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर अराउंड एस्टिमेशन है 5631 करोड़ जो है वो खर्चा होगा। लेकिन अभी इसको मना किया गया है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज आपके काटे जाएंगे, मोस्टली जो है पशुरियन, कैशू, अकेशिया, नोनी वुड रिमूव अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट साइक्लोन। तो ये थैंक गॉड अच्छी न्यूज है कि अभी फिलहाल इस तरह के प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं किया गया, बिकॉज ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकते हैं, राइट। और इसमें आपका जो है चिलिका लेक की भी बात आ जाती है। इनका नेस्टिंग ग्राउंड है दैट इज इन ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट डिवीजन एडजॉइनिंग द प्रोजेक्ट साइट, बट आल्सो लैक्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो चिलिका एस्चुरिन लेक को जो है वो विजिट करते हैं। सो चिलिका लेक दैट इज सतपाड़ा बाउंड्री इज एट द डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 10 to 11 किलोमीटर फ्रॉम द प्रपोज्ड एरिया। सो ऑलरेडी नेस्टिंग साइट दैट इज इन बलाकोंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। इसका जिक्र आ रहा है, इज अ डिस्टेंस ऑफ 2.3 किलोमीटर द प्रपोज्ड एरिया साइड एंड इज आल्सो कंटिन्यूअस टू द सी एंड द बीच। तो इस वजह से इसको जो है मना किया गया है। एंड दिस ईयर इवन 345 ऑलिव टर्टल नेस्ट वर डिटेक्टेड इन योर ब्रह्मगिरी, और इस वजह से यहाँ पे आपको कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट फॉर अस। एंड इसके अलावा और अगर हम इसके अंदर देखें तो दैट इज डन, राइट। सो बस ये इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्ट्स अबाउट दिस न्यूज। तो आपको ये कौन सी गेम सेंचुरी की बात आई है, दैट इज योर बालाखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना है, चिलिका एस्चुराइन की बात याद रखनी है, ब्रह्मगिरी फॉरेस्ट डिवीजन की बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज जो है बेटा वो है हमारी नेवल शिप के बारे में, और दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नाउ विद द कमीशनिंग ऑफ INS तमाल at Yantar shipyard in Kaliningrad, Russia on Tuesday, Indian Navy has likely inducted its last foreign built warship, क्योंकि हम खुद से बनाने लग गए हैं। तो INS तमाल में भी हमारा लास्ट जो है वो फॉरेन बिल्ट शिप होगा, वॉरशिप होगा, रशिया ने बनाया है। अभी इसकी टेस्टिंग भी रशिया में ही की गई है। एंड दिस इज मेजर माइलस्टोन फॉर द नेवी व्हिच हैज ओवर द ईयर प्रोग्रेसिवली इंडिजिनाइज्ड शिप बिल्डिंग, क्योंकि अब हम खुद करने लग गए हैं। एंड INS तमाल इज द 8th तलवार क्लास फ्रिगेट, ये लंदन है आपको। एंड दीज आर improved versions of that is Karivak 3 class frigate built by Russia for Indian Navy as part of the project 1135.6, and it's also second of the 4 additional follow-on ships of the class that were ordered. Now INS Trishul was commissioned in Kaliningrad in December last year, and the final 2 Triput then Tavasya are being built in India by War Shipyard Limited with the transfer of technology and design assistance from Russia. INS Trishul, then INS Triput, INS Tavasya, and now this is INS Tawal. तो ये चारों आपको याद रखने हैं। Triput, which was launched into sea last July, expected to be commissioned in 2026, will be India's first indigenous built तलवार frigate. ये सबसे important fact है, अगले साल इसको करेंगे ये कमीशन। And this is the story of INS तमाल and the Indian Navy's journey. तो INS तमाल की स्टोरी थोड़ी सी आपको डिस्कस करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं। इसके अंदर जो है इसका अगर हम देखें फैक्ट एंड फिगर, तो इट्स अ मल्टी रोल फ्रिगेट विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4035 लॉन्ग टन एंड एट अ फुल लोड लेंथ है 124.8 मीटर एंड अ बीम ऑफ 15.2 मीटर। इट्स अ मैक्सिमम स्पीड इज ऑफ 30 नॉट्स and a range up to 4850 जो है nautical miles. Ship will be manned by a crew of 250 sailors and 26 officers. तो ये formidable moving fortress at a sea की तरह एक तरह से ये basically use किया जा सकता है as a fortress. And then it carries 2 kinds of anti-aircraft missiles, ये carry कर सकता है अपने साथ। And 24 वर्टिकली लॉन्च्ड है एंड जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल एट अ रेंज ऑफ 70 किलोमीटर, 8 शॉर्ट रेंज इग्ला मिसाइल कर सकता है। एट अ क्लोज रेंज इनकमिंग एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल कैन आल्सो बी इवन डिफेंडेड बाय द शिप एंड 2 AK-630, सो फुल ऑटोमेटेड 30 mm रोटरी कैनन का इस्तेमाल हो सकता है इससे। और सरफेस में INS तमाल्स एंटी-शिप लैंड अटैक कैपेबिलिटीज आर सेंटर्ड अराउंड द BrahMos supersonic cruise missile, and the ship carries a complement of 8 such missiles which boast an operational range in the hundreds of kilometers and can fly at a speed of up to Mach 3. So frigate also is one of the 100 mm A190E main gun, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। This can fire even 20 kg of shells, तो इतना ये हमारे लिए पावरफुल है। एंड अंडर वाटर में इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो फॉर एन एंटी सबमरीन वॉरफेयर INS तमाल हैज RBU ASW rocket launcher that which can fire salvos of up to 12 rockets equipped with your depth
charges at, अगर हम देखें तो at a time, and a frigate also has 533 mm torpedo tubes, तो ये वाटर में भी काम कर सकता है, capable of launching heavy weight, आपके टॉर्पीडोज को लॉन्च कर सकते हैं। एंड देन आई इस्तेमाल बोस्ट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट हो सकता है, एडवांस आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम के साथ which acts as ears and eyes of the platform, so its suits include decoy of launching system with disrupt enemies radar and jammers, so इतना जो है ये पावरफुल हमारे लिए रहेगा। वारशिप कैन ऑल्सो कम्युनिकेट द अपग्रेडेड एंटी सबमरीन एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो द कमोव 28 एंड कमोव 31 which according to the Navy act as a major force multiplier। तो जरूर कर लेना, बिकॉज ऑब्वियसली वॉर लाइक कंडीशंस अब हमारी बहुत बार बन चुकी हैं, तो आर्म्स एमिनेशंस और इस तरह की चीजों को आप जरूर करो। नेवी हैड प्रीवियसली स्टेटेड दैट INS Tamal design provides it with enhanced steel feature and greater stability characteristics, and that it is equipped with your complex automated system। तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ये में भी आपका जो है INS Tamal will soon set sail for its home port in Karwar, कर्नाटका, और ये जल्दी हमारे पास पहुंच जाएगा। और इससे जो है नेवी हैज सेड दैट इट विल बी द लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप, बिकॉज उसके बाद हम इंडिजिनसली जो है वो आत्मनिर्भर भारत के अंदर खुद से ही शिप बिल्डिंग करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छे से तैयार कर लो, और चाहते हो तो मैं आपके लिए इसके इन सारी वीडियोस के ऊपर बेस करके आपको MCQs भी डिराइव कर दूंगी, लेकिन आप अच्छे से लर्न करो और फिर भी आप मुझे अपनी फीडबैक दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।